Hi friends, this is Miss Medico channel, and today we are with continuation of our video discussion of examination of skin. We had already discussed about the how we examine the skin and what's the importance of morphology and what are the different types of morphological primary lesions. Like we had already discussed about macule, papule, plaque, petechiae and ecchymosis. um, Now in this video lecture we are going to discuss other fluid filled lesions that we have to look for so that we can examine the secant lesions very well. If you like my videos, please subscribe my channel. If you feel any query, comment in the comment section so that I can answer. If you need improvement, please comment on that so that I will modify. So let us start today's video lecture of continuation of examination of skin. Now other fluid lesions we have to look for in skin. We must look for the pustules. What is pustule? As we already know, vesicle is the any cavity that contains air. When this vesicle is filled with pus, we call it pustule. So pustule is nothing, it's a pus filled vesicle. Pustules may be follicular when they are conical, extra follicular. Sometimes level of pus can be seen in a pustule. Look at this figure. This is the Nina Khanna's diagram of a pustule. They have shown this pustule on a skin. It's a pus filled hollow lesion. This one shows a different level of pus. As you can see clearly that there is pus in this lesion and we call it pustule. So it's a pus filled vesicle. What's pustule is a pus filled vesicle, and it may be follicular. It may be follicular. Many follicles can be seen on this pustule when they are especially conical, or it may be extra follicular, and sometimes level of pus can be seen in a pustule. यहाँ पे अगर आप इमेजिन कर पा रहे होंगे यहाँ पे क्लियरली पास विजिबल नहीं होता है, लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपेंस लेवल ऑफ पास कैन बी सीन. Number next lesion, fluid filled. It's also a fluid filled, that's called abscess. It's actually pus filled nodule. This B part shows the thick walled. It's actually the thick walled collection of the pus, usually deep seated होता है, with only a part of it visible on the surface. And this one is ready to rupture. Abscess is always ready to rupture, so appears surmounted by pustules. तो abscess जो है, it's a fluid pus filled, sorry not fluid, pus filled nodule having a thick wall. Abscess is usually deep seated with only a part of it visible on the surface. और यहाँ पे देख रहे होंगे कि एप्सिस जो है वो थिक वॉल्ड एक कैविटी होती है जिसमें पास होता है और डीप सीटेड होता है ये. फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे थर्ड में ये सिस्ट दिखाया गया है. एंड सिस्ट इज व्हाट? इट्स अ क्लोज्ड कैविटी विद एन एपिथेलियल और मेम्ब्रेनस लाइनिंग. ये जो लाइनिंग है ना, ये मेम्ब्रेनस या एपिथेलियम की बनी होती है, और इसी में इस सिस्ट में क्या होता है, फ्लूइड और सेमी सॉलिड मटेरियल. सो आपने डिफ्रेंशिएट किया कि व्हाट इज पास्टूल. पास्टूल इज पास फिल्ड वेजाइकल, और जो एप्सिस होता है वो डीप सीटेड होता है, उसका थिक वॉल्ड होता है और इसमें पास नड्यूल जैसा होता है. और सिस्ट जो है वो एक क्लोज्ड कैविटी होती है जिसमें कि लाइनिंग होती है मेम्ब्रेन की या एपिथेलियम की, और उसमें फ्लूइड या सेमी सॉलिड मटेरियल होता है. नाउ द नेक्स्ट लीजन which we are going to discuss, which we have to look for, which we have to examine, is the wheal. Wheal में क्या होता है? It's an evanescent elevated lesion. Evanescent means it hides out readily. ये एलिवेटेड लीजन होता है, व्हील एलिवेटेड लीजन होता है और ये हाइड आउट होता है, इवेनेसेंट होता है. इट
इज प्रोड्यूस्ड बाय अडीमा ऑफ डर्मा आर सबक्यूटेनियस टिश्यू। या तो ये डर्मा में, डर्मल टिश्यू में अडीमा होगा, या सबक्यूटेनियस टिश्यू में जो है अडीमा की वजह से जो है व्हील पैदा होता है। ठीक है, व्हील जो है वो किन किन डिजीज़ में आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट मैं आपको व्हील दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना ये व्हील ही है। ये जो यहाँ पे ये दाने निकल रहे, ये जो है ये व्हील ही है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ व्हील जो है यहाँ पे देख रहे होंगे स्किन में, ये व्हील होता है। ठीक है, तो व्हील्स जो है वो अर्टिकेरिया में देख रहे होंगे आप। वो इवानेसेंट एलिवेटेड लीजेंस होते हैं जो जल्दी ही डिसअपियर होते हैं, लेस देन 24 आवर्स। ये जो है ये जो आप लीनियर व्हील्स देख रहे होंगे, ये लीनियर व्हील्स जो है इनको हम डर्मोग्राफिक अर्टिकेरिया बोलते हैं, यानी कि ये लीनियर व्हील्स होते हैं। और थर्ड जो है इसके होंठ पे जो है ये अडीमा होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू का, इसको हम एंजियोअडीमा बोलते हैं। व्हेन द व्हील जो है extends into subcutaneous tissue and lasts 24 to 72 hours, most frequently occurs at mucocutaneous junctions पे, उसको हम लोग एंजियोअडीमा बोलते हैं। तो आपने देखा कि एंजियोअडीमा इज अडीमा व्हेन एक्सटेंड्स इनटू ST सबक्यूटेनियस टिश्यू, मोस्टली म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शंस पे होता है। ये आपने देखा डर्मोग्राफिक व्हील यानी लीनियर व्हील जो है। हम अर्टिकेरिया की बात कर रहे हैं कि यही जो है ये व्हील अर्टिकेरिया में देखते हैं हम लोग, ड्यू टू द ट्रांजिएंट डर्मल अडीमा। इट मैनिफेस्ट्स एट वाइट एलिवेटेड लीजन यूजुअली सराउंडेड बाय अ रेड फ्लेयर। आपने देखा होगा कभी कभार क्या होता है कि स्किन पे यूजुअली रैश जैसा निकलता है, वो अर्टिकेरिया होता है। वो एक वाइट एलिवेटेड लीजन होता है और उसमें रेड जो है फ्लेयर सराउंड करती है उसको, विच यूजुअली सबसाइड्स विदाउट एनी स्किन चेंज विद इन 24 आवर्स में ही ये सबसाइड होता है। और जब ये लीनियर होता है ना अर्टिकेरिया, इसको हम इट्स डर्मोग्राफिक अर्टिकेरिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना डर्मोग्राफिक ये लीनियर अर्टिकेरिया होता है। ये फिगर में आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे, मैं आपको फिगर में दिखाऊंगी। देखिए इस पर्सन को क्या हुआ है, लीनियर व्हील्स जैसे निकले हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। आई विल शो यू यहाँ पे तो ये लीनियर व्हील्स होते हैं। बॉडी में कभी कभार जो है इन लीजेंस के अलावा, प्राइमरी लीजेंस के अलावा सुपैसिफिक लीजेंस होते हैं, लाइक बरो होता है। व्हाट्स बरो? इट्स अ पैथोग्नोमिक लीजन ऑफ स्कैबीज। जब भी स्कैबीज का पेशेंट होता है तो उसमें कोई भी आप लीजन नहीं देखोगे, बल्कि एक बरो होता है। वो एक बरो मिलता है स्कैबीज के पेशेंट में, जिसको लुक आफ्टर करना ज़रूरी है, जिसको ढूंढना। ये बरो क्या होता है? ये सर्पेंटाइन कर्वलीनियर थ्रेड लाइक ग्रेइश और डार्कर लीजन होता है। ये लीजन तो होता है, लेकिन ये कुछ ऐसे लगता है कि लीनियर सर्पेंटाइन जैसा, और ये दिखता भी नहीं है। मैंने तो स्कैबीज के पेशेंट्स में ऐसे कोई लीजन एज सच नहीं देखा होगा। वो उनमें एक तरह की प्यूराइट्स होती है, वो खराशते रहते हैं, लेकिन एज सच इनको लीजन नहीं मिलता है। हाँ, लीजन उनको होता है और जिसको हम बरो बोलते हैं। तो बरो क्या होता है? इट्स पैथोग्नोमिक लीजन ऑफ स्कैबीज, और ये सर्पेंटाइन या कर्वलीनियर होता है। ये थ्रेड लाइक ग्रेश या डॉकल लीजन होता है, और ये फ्यू से लेकर cm तक भी हो सकता है, सेंटीमीटर तक भी हो सकता है। ओपन एंड इज मार्क्ड बाय अ पैप्यूल। अगर इनका ओपन एंड होगा वो पैप्यूल की तरह दिखेगा। और बरो में भी डिफ़िकल्ट टू डिसर्न इन डार्क स्किनड इंडिविजुअल्स। जो डार्क स्किन वाले होंगे उनमें तो हम यूजुअली नहीं देख पा रहे होंगे। मैं आपको इसका दिखाऊंगी यहाँ पे। सॉरी, फिगर नहीं दिखाई गई है इस बरो की। सो ये बरो जो है ये बिल्कुल एक कर्वलीनियर की तरह ही दिखता है। नंबर नेक्स्ट जो है वो है कॉमेडोन्स। कॉमेडोन्स भी पाए जाते हैं स्किन में, जो कि इंसिपेटेड प्लग्स ऑफ केराटिन एंड सीबम होता है, वेजेड इन डायलेटेड पाइलोसेबेशियस ओरिफिसेस।
जो हमारा स्किन होता है वहाँ पे जो है पाइलोस्पैशियस ऑरिफिसेस जो ओपनिंग्स होती है, उनमें क्या होता है, उनमें केराटिन डिपॉजिट होता है और उनमें प्लस सिबम डिपॉजिट होता है। जब ये दोनों डिपॉजिशन होती है तो कॉमेडोन्स जो है वो पाए जाते हैं। देन स्किन पे ये सीबम एक्युमुलेट होता है और केराटिन पाइलोसेबैशियस ऑरिफिस में, जो पाइलोस्पैशियस ग्लैंड्स होते हैं या हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं उनके जो एंड्स होते हैं उनमें ये जमा हो जाता है, ये केराटिन एंड सीबम। कॉमेडोन्स आर टिपिकली प्रेजेंट इन एक्नी वोल्गैरिस में, नेवियस कॉमेडोनिकस में और सिनाइल कॉमेडोन्स। यूजुअली सिनाइल सिर्फ कॉमेडोन्स पाए जाते हैं कभी कभार। और कॉमेडोन्स जो है वो दो तरह के होते हैं, ओपन कॉमेडोन्स जिनको हम ब्लैक हेड्स बोलते हैं, इन विच केराटिनस प्लग इज ब्लैक, जिसमें जो ये केराटिनस प्लग होता है वो ब्लैक होता है, उसको ब्लैक कॉमेडोन्स या ब्लैक हेड बोलते हैं। क्लोजर कॉमेडोन्स जिनको हम वाइट हेड्स बोलते हैं, जिसमें ये प्लग जो है इट्स कवर्ड बाय स्किन सो द लीजन अपीयर्स एज वाइट शाइनी पैप्यूल। इसमें मैं कॉमेडोन्स का आपको फिगर दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये ब्लैक हेड्स देख पा रहे होंगे, ये ब्लैक हेड्स है जिनको हम ब्लैक कॉमेडोन्स बोलते हैं। और यहाँ पे ये वाइट हेड्स जो है ये वाइट कॉमेडोन्स है। ये एक्नी वल्गैरिस में यूजुअली पाए जाते हैं। कॉमेडोन्स इज एन इंसिपेटेड प्लग ऑफ केराटिन एंड सीबम वेजेड इन अ डायलेटेड पिलोस्पैशियस ऑरिफिस। ओपन होते हैं ब्लैक, और ब्लैक उनमें केराटिन होता है प्लग, और क्लोजर जो है दे आर कवर्ड विद स्किन, सो दैट्स द रीज़न दे अपीयर वाइट। तो ये शाइनी होते हैं वाइट वाले, ठीक है। 3 डिजीज़ मैंने कहा, एक्नी वल्गैरिस, ऐसे भी एज सच कॉमेडोन्स पाए जाते हैं स्किन में, या नेवियस कॉमेडोनिकस भी में पाए, या सिनाइल कॉमेडोन्स भी पाए जाते हैं। अब जो है अब बात करेंगे हम सेकेंडरी चेंज की। मैंने कहा ना हमें पहले लुक आफ्टर करना, जब भी हम एग्जामिनेशन ऑफ स्किन करेंगे तो हमें प्राइमरी लीजन्स पे ही फोकस करना होगा। लेकिन जब प्राइमरी लीजन्स में कुछ मॉडिफिकेशंस आएगी तो हम उनको सेकेंडरी चेंज बोलते हैं। सेकेंडरी चेंजेस की वजह से मॉडिफाई हो जाते हैं प्राइमरी लीजन्स। तो सेकेंडरी लीजन्स किसकी वजह से? ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ सेल्स आर एक्सोडेट, जिसमें स्केल जो है वो कॉमन होता है। इज़ अ फ्लेक फॉर्मड बाय कलेक्शन ऑफ सेल्स ऑफ हॉर्नी लेयर ऑफ स्किन। स्किन की बहुत लेयर्स होती है, जब हम डिस्कस करेंगे एनाटमी तो वहाँ पे एक हॉर्नी लेयर होती है। तो वहाँ पे जो है फ्लैग कैसे बनता है, स्केल कैसे बनती है? एक्चुअली इसी हॉर्नी लेयर में कलेक्शन ऑफ सेल्स हो जाता है, उसी से फ्लैग बनता है, उसी से स्केल बनती है। अ ड्राई सरफेस स्केल्स में भी कैरेक्टरिस्टिक इन सम डिजीज, स्केल्स पाई जाती है, जैसे अभी मैंने कहा सोरेसिस की एक स्केल होती है, सिलिवरी स्केल, ऐसे डिजीज में पाई जाती है सेकेंडरी चेन्स लाइक सोरियासिस। क्रस्ट क्या होता है? इट्स ए कलेक्शन ऑफ डेड एपिडर्मल सेल्स, ड्राइड सीरम जिसको बोलते हैं, डेड एपिडर्मल सेल्स की कलेक्शन जो है उसको क्रस्ट बोलते हैं। और कभी कभार क्रस्ट में ब्लड, ड्राइड ब्लड भी होता है। इट इज़ येलो टू ब्राउन एंड समटाइम्स हेमोरेजिक, कभी कभार इसे खून भी आता है क्रस्ट से। क्रस्ट्स में भी इजीली रिमूवेबल, इम्पेडिगो में वहाँ पे बहुत जल्दी निकलता है क्रस्ट, या एडहिरेंट होता है, जैसे इक्थाइमा में एडहिरेंट होता है क्रस्ट। रिमूवल ऑफ क्रस्ट रिवील्स ए मॉइस्ट सरफेस इरोजन और अर्थ। जब हम इस क्रस्ट को रिवील करते हैं तो वहाँ से या तो मॉइस्ट सरफेस होगा, या इरोजन होगा, या अल्सर होगा। सेकेंडरी चेंज ड्यू टू लॉस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्किन, कभी कभार जो है स्किन लॉस भी होता है, जैसे इरोजन होता है स्किन का ड्यू टू कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ वाइबल एपिडर्मिस विद नो और मिनिमल लॉस ऑफ डर्मिस। इरोजन में कंप्लीट और पार्शियल लॉस होता है एपिडर्मिस का, और डर्मिस लॉस नहीं होता है, होता भी है तो थोड़ा सा होता है। इरोजन उसको बोलते हैं कि वाइबल एपिडर्मिस लॉस हो जाता है। फिर अल्सर जो है उसमें लॉस ऑफ एपिडर्मिस होता है एंड एटलीस्ट अपर पैपिलरी डर्मिस, दो समटाइम्स अल्सर में एक्सटेंड इनटू डीपर टिश्यू। ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अल्सर शुड इंक्लूड, हमें अल्सर की साइड देखनी होती है, शेप देखना होता है, साइज देखनी पड़ेगी, सरफेस देखना पड़ेगा, और स्किन देखना पड़ेगा सराउंड का,
5 एसेस जो है वो अल्सर्स में हमें देखने पड़ेंगे और 2 बीज। ये याद रखिएगा, जब भी अल्सर को एग्जामिन करेंगे तो उसका जो है ये सारा 5 एसेस और 2 बीज यानी बेस और बॉर्डर देखना पड़ेगा। उसके अलावा जो है फिशर, फिशर क्या होता है? इट्स अ स्लिट इन द एपिडर्मिस। अगर ऐसे स्लिट और ऐसे ना, जिसको बोलते हैं कि एक जो कंटिन्यूटी है उसमें लॉस तो नहीं कहेंगे, इसको स्लिट बोलते हैं। कट जिसको बोलते हैं, कट इन एपिडर्मिस इज फिशर। कट, जब एपिडर्मिस में कट लग जाए उसको हम फिशर बोलते हैं, ठीक है। ऐसा भी देखने को मिलता है स्किन डिजीज में। कभी कभार स्किन में साइनस होती है, एक ब्लाइंड ट्रैक होती है स्किन में, जिसको हमने एग्जामिन करना होगा। कभी कभार एक्सकोरिएशन होती है यानी लीनियर एरोजन। एक्सकोरिएशन इज एरोजन यानी जिसमें वाइबल डर्मिस लॉस हो जाता है। व्हेन द स्किन इज स्क्रैचड, जब हम खराशते तो वहाँ पे एक्सकोरिएशन होती है। तो मैंने अभी जो है वो स्केल्स का बोला था। ये हमारा स्केल जो है वो फ्लैक्स कलेक्शन ऑफ सेल्स इन हॉर्नी लेयर होता है, वही जैसे मैंने सोरियासिस में कहा। लूजली अटैच्ड सिल्वरी स्केल्स पहले में देखा गया है, सोरियासिस में होता है। और टिपिकल लिखा गया है, इट्स अ टिपिकल ऑफ सोरियासिस। नंबर सेकंड पे जो है अगर आप देख पा रहे होंगे, ये ब्रनी स्केल्स होती है। एसेंटेटेड बाई ग्रैटिंग द लीजन इन पिटीरियसिस वर्सिकलर। पिटीरियसिस वर्सिकलर में जो है ब्रानी स्केल पाई जाती है, मतलब इसमें जो स्केल होती है वो भी कलेक्शन ऑफ सेल्स ही होती है हॉर्नी लेयर में, लेकिन यहाँ पे ये ग्रेटिंग की वजह से स्केल जो है वो उठती है और एपिटीरियसिस वर्सिकलर में ऐसा देखा गया। यहाँ पे जो है ये कॉर्लेरेट जो है स्केल्स का पाया जाता है, ये एपिटीरियसिस रोजेशिया जो है उसमें पाया जाता है। यहाँ पे जो फिश लाइक आई कैन से स्केल्स पाई जाती है इक्थियोसिस में। So this was all about the examination of the skin disease, how we examine the skin. I hope you like the lecture. If you have any query, comment in the comment section. Thank you.